Hi everybody. Today I'll be talking about how to wean your baby from night feeds. After your baby is some 7 to 8 months, they tend to stick to you throughout the night, and it becomes difficult for you to sleep properly, to get a proper sleep, or it can also lead to backaches. These were the cases with me, and office has already started, and you feel that it's getting tiring a lot because the next day when you wake up you're not fresh, you don't feel fresh at all because you cannot move from that position because your baby is stuck to you. So I know this has been a concern with many of the mothers out there because I have been talking to few of them, and I'm trying certain things till date. I'm trying these things, so it's been 4 days, 4 to 5 days that I have fed my baby during night, and I'll be telling you the things that I did from the start till now, and hope this helps at least someone out there. So you can try all these methods or any of these methods. If it works, then well and good. you know Post a comment for that. Help me understand if it was helpful for somebody out there. I was at my home with my parents. So I was during the Diwali vacation, I was there. So I spoke with my mom that, Mama, I'm trying to do this, that I would be needing to wean my baby from breastfeeding. अभी दिवाली के दौरान it's been hardly 2 weeks, right? That we saw Diwali. So तभी start किया. The first day nothing happened. I tried to pick the baby up. I tried to console him, but no, that wasn't effective at all. And I felt tiring, and I was feeling a bit nervous on what to do next. So after about 20 to 30 minutes, I fed him. The next day I was more determined. तो नेक्स्ट डे अराउंड 9:30 10 o'clock तक वो सो गया, एंड ही वोक अप एट 11:30. तो उठने के बाद यू नो आई ट्राइड, ओके, बिफोर दिस देर इज़ अनदर स्टोरी. सो स्टार्टिंग में, लाइक, दिन का मेरा फीडिंग बहुत कम हो गया था, ऑलमोस्ट नील. So I started off with a band-aid method. I would call it a band-aid method. This is from another person's YouTube video that came across this method. It was in Malayalam. So band-aid method is nothing but you apply band-aid on your body, and आप दिखाते हो बेबी को कि देखो बैंडेड लगा है. You cannot touch it. If you touch it, mama gets hurt. Okay, mama को पेन होता है. This is what you have to explain your baby. या आपके ऊपर लगाओ, या आपके पति के ऊपर लगाओ, या आपके फर्स्ट बेबी के ऊपर लगाओ, दिस इज योर सेकेंड बेबी. इन शॉर्ट, उसको ये समझना है कि बैंडेड जहाँ लगा है, यू नॉट सपोज टू टच इट और डू एनीथिंग टू इट. ओके. सो आई स्टार्टेड विद दिस बैंडेड मेथड. आई यूज टू अप्लाई इट ऑन माई रिस्ट, या फिर कहीं पे भी जहाँ उसको दिखाई दे. And I used to show it and touch it and say, दुख रहा है, don't touch it, don't touch it, mama gets hurt. ऐसे बताते रहना. तो he understands, yeah, something like this is not to be touched. Come out with a term of yours. In Malayalam we call duhu or something like that. Come up with terms like that. Okay, just say pain, uh, or ouch, anything like that. Okay, let the baby understand that this is equal to this. Okay, once that is done, uh, during your morning feeds, try to stick a band-aid, or not a band-aid if it need not to be a proper band-aid. आप एक normal स्किन के ऊपर लगाने वाला बैंडेड होता है ना, वाइट कलर का टेप जैसा, जस्ट कट इट एंड अप्लाई इट. दैट्स इट. अप्लाई इट ऑन योर निपिलर एरिया. तो बेबी को थोड़ा डिस्गस्टिंग फील होता है एक्चुअली. दैट्स हाउ ही रिएक्टेड. So when he saw it, he was like, kind of reaction था उसका, like, oh, and then he started to go away from me. तो ही वॉज लाइक, ओ, ऐसे सब करके बच्चों, हर बच्चों का अलग अलग रिएक्शंस होता है, चेक करो इफ़ इट वर्क्स. सो सुबह का फीड ही टोटली स्टॉप्ड, एंड आई ऑल्सो हैव अ केयर टेकर
हु पुट्स हिम टू स्लीप ड्यूरिंग द डे आवर्स, तो वो ख़त्म हो गया। तो बट दिस मेथड डिडंट वर्क एट नाइट, बिकॉज नाइट में मैं ही इज़ नॉट फुल्ली कॉन्शियस ऑफ कि क्या है क्या नहीं है, उसको नहीं पता, नींद में है ना बच्चा। तो वो जब नींद से उठता है तो he just needs milk, he just needs mama, he just needs his milk bottle, I would say, human milk bottle. So he needs it. So when you open it, he cannot see, he doesn't even open his eyes, वो आँख भी नहीं खुलता है, तो he gets attached to it and then that's it. So night में ये workout नहीं हुआ. There were 2-3 things that I tried. All of this worked during the day, but रात में ये कुछ भी workout नहीं हुआ. First was band-aid method. Second, I tried dried aloe vera. So dried, not just dried aloe vera. You have got options like neem juice, bitter gourd, anything of that sort. Bitter gourd didn't work for me because after applying that, जब बेबी उसको टेस्ट कर रहा था थोड़ी देर के लिए थोड़ा अजीब लगता था, देन ही यूज्ड टू लीव एंड देन अगेन ही यूज्ड टू गेट ग्रैब ऑन इट, जब उसका पूरा टेस्ट चला जाता है ही कीप्स ड्रिंकिंग इट विदाउट एनी इशू. So even that didn't work for me during the night hours. But gradually he understood that there is something that is getting conveyed to me that I cannot drink it. तो ये almost 2-3 days मैंने try किया, and then I took my parents' help because I was getting too exhausted to wake up at night and walk for 1 hour, 45 minutes, sometimes even 2 hours to console him. तो मैं उठती थी, जब जब भी वो उठता था, मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया दिस टाइम, तो जब वो उठता था मैं भी उठती थी एंड देन आई यूज़ टू टेक हिम अराउंड, रॉक करते करते चल चल के आई यूज़ टू कंसोल हिम. बट सर्टेन टाइम्स बहुत रोते रहता था, कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था उसका. तो फिर मेरी मम्मी ने बोला ठीक है अपन उसको उसके पसंद का कोई चीज़ देते हैं, ताकि उसको ऐसे ना लगे कि दैट वी आर नॉट लविंग हिम. आई फेल्ट दैट पॉइंट वैलिड. ओके, तो हम लोगों ने हाफ़ बनाना दिया. हाफ़ बनाना को थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा, लाइक हल्का सा मिठास उसके टंग पे, तो हाफ़ बनाना थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ से मैश करके उसके टंग में रख के दिया. तो ही वॉज लाइक ओके, ही काम हो गया थोड़ा. एक बार काम हो जाएगा, देन कीप ऑन गिविंग दिस अ बिट एंड टॉक टू हिम, नरेट अ स्टोरी. में भी मैं उसको कुछ भी मुंह में जो भी आता था मैं स्टोरी सुनाते जाती थी. तो आई यूज़ टू टेल हिम सम स्टोरी, देन ही यूज़ टू लिसन टू इट एंड देन फॉल अस्लीप. तो बट नेक्स्ट टाइम, हाँ, उसके बाद जो नींद था वो ऑलमोस्ट 3 to 4 hours लास्ट किया. उसके बाद फर्स्ट टाइम जब वो उठा तब मैंने उसको फ़ीड किया, बट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मैंने फ़ीड नहीं किया. मैं उसको उठा के वापस घूमी, मैं घूमी, मेरे पापा घूमे, मेरी मम्मी भी घूमे. तो इट वाज लाइक शिफ्ट बाय शिफ्ट. जब मम्मी थकती थी तब मैं उठाती थी या मैं पापा उठाते थे, तो वैसे चल रहा था. यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी बडी एट योर होम. इफ़ यू आर अलोन देन आपको पूरी एनर्जी पहले दिमाग में सोच के रखना होगा, यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप फॉर कमिंग 1 week. If your baby is quite cooperative, then maybe hardly 1 or 2 days, then they'll forget that. There are certain things that रात को जब उठता था तो उसको बनाना मैंने 2 दिन किया, then मुझे लगा यार हर बार ऐसे रोएगा और मेरे को मीठा कुछ देना पड़ेगा. I wasn't comfortable with that. So next time he woke up, पापा ने कुछ घर पे एक छोटा सा प्लास्टिक का कैंडल जैसा था, दैट वाज न्यू फॉर हिम टू टच एंड फील. तो उसको देते साथ वो हाथ में पकड़ के थोड़ी देर टच किया. ही वॉज, उसका आँख फिर भी बंद था. थोड़ी देर टच किया, थोड़ी देर खोल के उसने देखा ओ कि नया चीज़ है, तो उसने पकड़ के थोड़ी देर उसके साथ खेलते रहा, दोनों हाथ से उसको महसूस करते रहा. एंड देन आई यूज़ टू पैट ऑन हिम. ऐसे पैट करते करते सो गया. एंड नेक्स्ट टाइम जब व्हेन ही वोक अप, फिर भी वो आँख बंद करके उठता था, तो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू शो दैट दिस इज़ समथिंग दैट यू लाइक एंड ट्राइंग टू गिव यू दैट. तो वो एक 10 to 15 minutes के बाद ही मैं उसको दे पाई. तो आई उठाती थी, मैं उसको थोड़ा कंसोल करती थी, फिर ये हाथ में देती थी और उसको बेड पे रख देती थी और साथ में उसको पैट करते रहती थी. तो वैसे वो सो रहा था. दिस कंटिन्यूड फॉर अबाउट 4 to 5 days. इसके बाद रॉकिंग मैंने आपको बताया. फिर हाँ, फिर रिसेंटली जो हम लोग पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं, दैट इज़ हमको डॉक्टर ने बोला था कि ऑलमोस्ट आई थिंक 12th month, 1 year को जब हो गया था, तब डॉक्टर ने बोला था इसको डाइल्यूटेड मिल्क दे सकते हो. तो हम लोगों ने 30 ml से स्टार्ट किया.
उसका जो फीडिंग, मेरे पास पुराना फीडिंग बॉटल है, लव लैब का मैंने फीडिंग बॉटल लिया था, तो उसमें 30 ml मिल्क और बाकी 10 to 20 ml वाटर डाल के बॉईल करके उसको हल्का ठंडा करके थोड़ा वार्म ही रहने देती थी, एंड देन आई यूज्ड टू फिल इट। उसको पहले मिल्क पसंद नहीं था, उसको बीच बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था मिल्क को, लाइक बीच में बनाना मिल्क शेक बना दिया, या चीकू मिल्क शेक बना दिया, एनीथिंग, डेट्स मिल्क शेक बना दिया, तो उसको हल्का हल्का ओके दूध इज़ ऑल्सो फाइन। तो दिस टाइम उसको मैं कुछ शक्कर वक्कर कुछ नहीं, प्लेन मिल्क विथ लाइक डाइल्यूटेड मिल्क देती थी। So we started with 30 ml. We gradually moved to 60 ml. Now I'm giving about 60 to 90 ml of milk in diluted format. So whenever you are comfortable that the baby of digestion related issues, you can give it is what my doctor said. Check with yours. So उसको काउ मिल्क देती हूँ अभी मैं रात को, एंड देन पीते पीते तो नहीं सोता है, पहले पी लेता है, थोड़ा देर घूमता है बेड के ऊपर यहाँ वहाँ उछल कूद के। He used to blabber something, poke my nose, eyes, ears, and then he keeps on saying something which you don't know. And then gradually you keep on patting him. अगर नहीं सोता है तो मैं एक 2 मिनट्स उसको उठा के वॉक करती हूँ, फिर ऑलमोस्ट थोड़ा ड्राउजी हो जाता है तो मैं लेटा के पैट करके वापस सो जाता है। सो दिस हैज़ बीन द ट्रेंड सिंस पास्ट 3 to 4 days। तो अभी तक कंप्लीटली 4 to 5 days मैंने उसको 4 days आई गेस, या 4 days मैंने उसको अब तक रात का फीड नहीं दिया है, एंड होपफुली दिस इज़ वर्किंग। आई थिंक ही इज़ नॉट डिमांडिंग फॉर फीड नाउ व्हेन ही कम्स टू मी। प्रीवियसली जब मेरे पास आता था, ही ओनली वांटेड माय मिल्क, ही डिडंट वांटेड एनीथिंग एल्स। अभी मेरे पास आता है, ही हग्स मी and I can pat him, and it's a different feeling. I don't know, if when you experience it you will get to know this. So that's the briefing of everything that I have tried so far. Hope at least some of this helps you. Once you are comfortable, you have decided or made up your mind that is अब मैं और feed नहीं करने वाली, and it's personal choice. Do not make yourself feel low that कि यार बाकी सब तो दे रहे हैं, मैं नहीं, मुझे क्यों ऐसे फील आ रहा है। It's okay. You have fed your baby for 6 months and now anyway your milk is also diluted. पानी ज़्यादा है उसमें, अगर आप पम्प करके देखोगे तो कंटेंट ऑफ पानी could be greater. And now as he is dependent on solid foods as well, only if your baby is eating your solids well, go for this. Or else just check with your doctor, is it a good time to wean my baby, is his weight proper, या अगर उसका वेट आगे पीछे है एंड योर डॉक्टर इज़ नॉट वेरी श्योर ऑन weaning and stuffs, then do not do it now, try later. But if your baby का weight सब सही चल रहा है with solids, then gradually decrease this. Or if you're willing enough to breastfeed your baby for longer duration, good, go for it. It's always good to give your baby your milk. So yeah, that's it from me, and these are the methods that I've tried so far. If at least any of these method helps you out, let me know which of these tips worked for you.